Hello, and welcome back to the Mid Wicket, guys. And finally, bhai, we have the announcement of Mr. Gautam Gambhir as the official Indian coach. A new era in the Indian circuit, bhai. Matlab, obviously, we haven't seen such a dynamic presence, dynamic ex-player, जो जिसके इतने radical thoughts, radical beliefs, and एक perception of cricket game itself है. That is like a perception of Gautam Gambhir. With यार Gautam Gambhir entering this, मैं एक बात बताऊं, देखो दिस इज अ न्यू एरा। एक और फैक्टर में अगर हम सोचे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हिट करने वाली बात, बट जो हमारा पहले रवि शास्त्री एरा था, देन यू हैड एन एरा जब अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, ये सारे कोच जो हमारा 2007 का बैच था, वो वाले लोग with वर BCC, कोचिंग with इंडियन टीम। Mr. VVS Lakshman coming in between as हाँ the interim हाँ, coaches. सो वो हमारा 2007 वाला बैच वाज द कोचिंग का उसमें। अब जो हमारा 2011 वाला बैच रहा है, वो वाले प्लेयर्स आर कमिंग टू कोच अस। मतलब ऑब्वियसली इट Exactly. हिट्स एज अ फैन कि उन लोग को हम खेलते देख रहे थे, नाउ दे आर द हेड कोचेस, And सो वी आर शिफ्टिंग। मतलब मेरे हिसाब से अब धीरे exactly. धीरे बी इट आशीष नेहराज, बी इट मोर प्लेयर्स ऑफ दैट एरा, तो The players 2011 that me के and बाद Chirag have seen playing on TV या फिर we have seen them play closely कि अच्छा ठीक है यार इसको तो हम proper follow करते हैं. but now what matters is not the person who is sitting on the seat, but what matters is कि अब वो क्या काम करेगा जिसकी वजह से इंडियन Exactly. टीम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। Exactly. 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 वी आर हियर टू डिस्कस कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं दैट विल डिटरमाइन गौतम गंभीर का सक्सेस या फेलियर एट इंडियन टीम। पहले I would love to ask चांद, देख तेरा ओपिनियन बीइंग अ जीजी फैन, I would love to know, तू केकेआर फैन रहा है, जीजी फैन रहा है इतने टाइम से, Exactly. हाउ डू यू सी दिस एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर गंभीर? भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक गंभीर से ज्यादा सीरियसली कोई जॉब लेने वाला था. गंभीर loves India, गंभीर loves cricket and गंभीर loves winning. गंभीर loves the emotions that come with it as well. मेरे हिसाब से जीजी with the mentality wants to that he is the perfect person for this job right now. अब मैं ये बोल सकता हूँ with confidence. We have seen his track record भाई. He has been भाई देखा जाए तो very good. His track record is I think underrated in my opinion. केके का तो आती से धूम मचाई थी, तुमने देखा ही है. उससे पहले LSG as a new team as well was making qualifications every time. We have seen Gigi ka heavy presence in the Delhi circuit in itself, and we have seen how players under Gigi like to flourish and how they'll perform in a different way of confidence. कि हाँ हमारे पास कोच की बैकिंग है. He likes to back his players. एंड दैट इज वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम कि अब ना एक चीज, मतलब ऑब्वियसली तूने बोल दिया गंभीर हैज बीन टेकन एज अ रैडिकल कोच। वन थिंग Yeah, दैट separates him from other coaches is maybe he's not the he will not be a media pleasant exactly, coach, he won't be a people pleasant coach, but he will be somebody जो टीम को आगे रखेगा अपने आप से, that is a perception exactly. as of now। अब as we discuss हाँ. the factors, सबसे पहले factors पे आते हैं। as we discuss the factors हम खुद clear कर देंगे how will things shape under Gambhir, and Shape is under it Gambhir. termed to be a good success or is it termed to be a failure? Before starting the video, एक चीज जो मैं गंभीर के बारे में बोल सकता हूँ, I see only two ways for him. Either he is going the trophy मतलब ये लेता रहेगा, बेसारी और ट्रॉफी इधर का तो गंभीर ले जाने वाला है या फिर इतनी कंट्रोवर्सी हो या जाएगी ग्रेग चैपल, या ग्रेग हाँ चैपल, हाँ बात ही exactly. खत्म। Nothing in between. You have no in ग्रेग between। चैपल जितना बुरा तो नहीं होगा यार. आई हाँ डोंट थिंक obviously। ग्रेग चैपल जितना बुरा नहीं होना चाहिए, बट या इट इज पॉसिबल कि काफी कंट्रोवर्शियल स्टिंट रहे. एनीवे, Now coming on to the factors that will determine वो, before that yeah, like and subscribe कर देना, you just watch the videos and do not like and subscribe, I don't know why, we give you almost daily cricketing content even after the World Cup, so please do subscribe। इवन आफ्टर कमिंग टू द First नानी का घर भाई. first factor by चांसेस youngsters, so भाई. एक चीज जो गंभीर के साथ हमेशा ही अलाइन होगी wherever his coaching stint comes is his trust on youngsters and his trust on people who he sees कि उनमें पोटेंशियल है। पहली बात, मैं एग्जैक्टली यंगस्टर्स ये नहीं बोल रहा कि ये उन बच्चों को लाता है जो लाइमलाइट ले लेते हैं, he brings या he sees caliber। ये नहीं देखता तेरे एग्जैक्टली कितना पास्ट रिकॉर्ड है, तेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, he sees कि तुम में अगर कैलिबर है एंड मेरी टीम को वो जरूरत है, you will flourish under my role। एग्जैक्टली फॉर सिंपल एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, समबडी लाइक आयुष बडोनी, जो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा डोमेस्टिक खेला था उस टाइम तक जब जीजी ने उसको पिक करा था, एंड ही ट्रस्टेड हिम कि तू मुझे ये वाले रोल में एक ऐसा प्लेयर चाहिए, नहीं है कोई और सीनियर प्लेयर, आई डू नॉट केयर, मैं अपने टेम्पलेट को चेंज नहीं करूंगा, आई विल फिट प्लेयर्स इनटू दैट, बिकॉज एग्जैक्टली. इंडिया में इतना पूल है कि तुझे कोई भी टेम्पलेट खिलाना हो, यू विल गेट द प्लेयर्स यू रिक्वायर। Second, मेरे similar example of Harshit Rana, the famous Harshit Rana. You have seen him how he is radical in his KKR approach itself. तुमने देखा था हर्षित राणा को KKR में वो by the flying case incident in itself.
एक बारी भी हर्षित राणा का कॉन्फिडेंस ब्रोक नहीं हुआ है। जीजी kept backing him up. जीजी को परफॉर्मेंस से ज्यादा जीजी को इंटेंट चाहिए तुम्हारा पिच पे कि हाँ एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू विन, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग Exactly. टू प्ले द वे जीजी वांट्स टू प्ले. This is why I also believe a third youngster, एक youngster जो I think I love that youngster, which will flourish a lot under Gambhir is because of his personal liking to that caliber is Arshdeep Singh. A left-handed pacer is what Gambhir loves to back on. He wants the clutch mentality in him. He wants the calm, steady, but at the same time effective mentality, and that is exactly what Arshdeep brings you to the table. Which I believe Exactly. these type of youngsters, especially pacers, will be very very crucial to Gambhir's stint, and we might be seeing a new uprising in the pacer itself. A And confidence, a radical approach, और एक अच्छा coach. एक चीज जो यंगस्टर्स को देखिए, अब एक बेटर फायदा हो सकता है कि अब यंगस्टर्स को ना ये पता होगा कि आई बिलीव एक जो वो होता है ना श्योर शॉट स्पॉट इन द इंडियन टीम, वो अंडर गंभीर कम हो जाएगी कि यू हैव नॉट बॉट एनी सीट. इट्स अ Exactly. अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर एवरीबॉडी, बी इट एनीवन. जो एक क्लीशे लाइन है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो वाली चीज हो जाती है अब इसके हाँ, में. सिंपल है कि उसमें अब गंभीर विल जज यू ऑन योर टैलेंट रादर देन एनीथिंग एल्स. नाउ Exactly. मूविंग ऑन टू अ सेकंड थिंग जो आई थिंक इंडियन बीट एनी फील्ड, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, किसी भी पर्सपेक्टिव में मीडिया परसेप्शन विल डिटरमाइन हाउ पब्लिक विल सी अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एंड उस बंदे के ऊपर खुद भी अफेक्ट होता है. आई नो श्रेयांश विल कम अप विद द फर्स्ट लाइन कि गंभीर को फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट आई विल काउंटर दिस व्हेन ये देख आईपीएल टीम में ये फर्क पड़ना इज वेरी डिफरेंट. वहां ये इंडिया का जो फैन बेस है ना, वहां वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग फैन बेसेस है अलग अलग टीम्स के. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वो 10 टीम्स भी एक साथ तुम्हारे पास आ जाएगी, अलाइन होके तुम्हें सिंगल पोजीशन को, सिंगल टीम को वो लोग देखते हैं. नाउ you know media, you know media how some very good known sports channels set up their own agendas. They have the work of PR and everything, भाई वो it is not hidden. And अभी पता है एक recently तो if anybody has noticed after the lockdown era, हम लोगों ने बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही बंद कर दी थी, बीट मतलब जो प्री सीरीज कॉन्फ्रेंसेस प्री सीरीज अपनी वो टीम अनाउंसमेंट एक्सेट्रा 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 हमने बंद कर दिया कोई बिकॉज आई क्वेश्चंस थिंक नहीं थे हमारे पास. बिकॉज आई थिंक बीसीसीआई नोज की मीडिया ना कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो कुछ भी पुट अप करता है, एंड दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ सिनेरियोस. रिमेंबर द विराट कोहली सौरव गांगुली फाइट, ऑब्वियसली दैट वाज वेरी अंदर से बहुत खराब होगी, बट मीडिया ने उसको हाइप कर दिया था, दैट वाज ऑन डिफरेंट. सो आई वुड एक्चुअली से ये बहुत फर्क पड़ता है मीडिया परसेप्शन से, एंड इट इज ऑन गंभीर जो उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. ही हैज टू बी. आई डोंट थिंक गंभीर को चेंज करना पड़ेगा. इन माय ओपिनियन हाउ जर्नलिज्म कैन मे बी वेरी इन गंभीर एरा इज, देखो गंभीर को एज अ पर्सन फर्क नहीं पड़ने वाला. इट्स वेरी वेरी क्लियर. गंभीर ने बहुत अच्छे खासे इंटरव्यूज में बोल दिया है. आई नो मीडिया गेट्स टू योर हेड, बट एट द सेम टाइम मीडिया परसेप्शन कैन चेंज द इंडियन ऑडियंस itself. If Gambhir is backing up a player, if the coach is backing up a player, it's very important for the media to understand that there is a reason behind it. And other media somehow becomes the conveyor of Gambhir's intent. If that player's intent and not radicalize that player, if not scrutinize that player, it will help a lot to Gambhir. But नहीं श्रेयांश, if you are anywhere believing sitting in India तो बिलीव करता है कि मीडिया एक चेंज हो सकती है फॉर एनी पर्सन एवर, दैट इज नॉट वो तो नहीं होने वाला, बट मैं तभी बोल रहा हूं. हाँ, इसीलिए आई एम सेइंग जीजी हैज टू लुक आउट अ वे कि वो कैसे टैकल करता है, अकोमोडेट करना पड़ेगा उसको. बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट टाइम. आई डोंट थिंक वी हैव सीन जीजी गोइंग अंडर इमेंस हेट. यार मजाक से हटके उसको हर जगह स्क्रूटनाइज करके नहीं, तू मेरी बात नहीं समझ रहा. जीजी को फर्क नहीं पड़ेगा, जीजी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट द प्लेयर्स प्लेइंग अंडर जीजी ना उनको फर्क पड़ता है. when you are under a particular news channel every day या फिर every news channel, उन चीजों से फर्क पड़ता है प्लेयर्स को यार. I think that's a positive that GG brings with him ना यार. उसको हम फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया, मेरे हिसाब से यही था सबसे अच्छा पॉइंट कि with GG media perception actually might not matter to the player as well if they play for the country. वो चीज जीजी को समझानी पड़ेगी, वही कह रहा हूँ, इनकलकेट करनी पड़ेगी कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेट्स फोकस ऑन द रिजल्ट्स. Exactly. and साथ ही साथ I would say कि भाई initial results are very necessary. This is not a बल्कि मैं तो बोलूंगा जिस तरह का radical change हुआ है, I think initial results are when we actually need to back GG as a coach. वही that is how you perceive. I perceive as a person जो मीडिया ना खाने को बैठी होती है किसी को भी. हाँ वो तो है. हाँ,
So now But this is moving where on I to believe the कि initial results जो तूने बोला important है, वही मैं बोलने वाला था. With such changing in the ideology of cricket in itself, मेरे ख्याल से जो होने वाला है, I think few goof ups should be looked away. हाँ, बट इट डिपेंड्स, ये तो ट्रॉफी की तक की बात कर रहा है, बिकॉज पहले आईसीसी ये टूर्नामेंट ट्रॉफी आते तक ही की नहीं. हाँ He has given you bilaterals की बात कर रहा हूँ भाई मैं, जो bilaterals wasted मानते हैं ना, उसकी वजह हाँ से एक बायलेटरल. जिम्बाब्वे मैच हारने वाली चीज पे जो प्लेयर्स को बाहर निकालने वाली बात हो रही थी, वो बंद करनी पड़ेगी. नाउ लेट मी कम टू दिस थर्ड पॉइंट जो हमने सोचा था, दैट इज लिबर्टी इन डिसीजन मेकिंग. Exactly. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंसेस जो गंभीर ने कोच करे हैं, बी इट केकेआर, बी इट लखनऊ सुपर जायंट्स, NHC. यार you would have seen the owners there have given Gambhir a liberty in his role. He was never the Exactly. head coach, he was a mentor for the team. If तुम बड़े मतलब जो इस perspective से बार देखो, ओनर ने किया है केएल राहुल के साथ, इट वुड हैव नेवर हैपेंड इफ जीजी वाज इन द कैंप. नहीं नहीं ट्रस्ट मी नहीं ऑन दैट. मतलब हाँ, मैं तुझे बात बता रहा हूँ कि जीजी का इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा रहता है, बट या नाउ कमिंग टू द इंडियन cricket team setup where you have a hierarchy for everything. या Right now, BCCI has a hierarchy with their president, secretary, selectors, head coach, captain. I think this is the vertical hierarchy that I see as of now. Now, Gambhir has to कहीं ना कहीं make up with the BCCI. उसने देखो, पहली बात, जब अभी तक जो न्यूज आई है, गंभीर ने अपने कोचेस खुद के मांगे थे. उसने बोला था या मुझे रोहित एज कैप्टन चाहिए. उसने कुछ असिस्टेंट शर्तें कोच होना चाहिए. उसने अपने खुद की शर्तें रखी थी कि मुझे इन्हीं शर्तों पे काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीसीआई ने उस टाइम बातें मान ली इजीली. आई वाज सरप्राइज्ड. आई थॉट कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी नज करेगी, नहीं हमें भी ये करना है, वो भी हमें भी वो करना है. बिकॉज राइट नाउ तू देखेगा, जय शाह ने अजीत अग्रवाल को बहुत ज्यादा पावर दे रखी है. जय शाह हिमसेल्फ होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर्स इन द डिसीजन मेकिंग्स. सो अब उधर if any conflict comes between, I'm not saying players and Gambhir, but Gambhir and the higher authorities. आई एम सेइंग गंभीर बैठ के सिलेक्टर्स की मीटिंग में ये बोल सकता है, तुम पांचों को ये प्लेयर चाहिए, बट आई वांट द सेकंड वन. हाँ, ही that is going एंड to दैट happen. and that is where I would love to see कि BCCI या फिर the decision makers, how do they react. I think Ajit Agarwal is a very smart guy in this situation. He backs his team, he backs his coach, he backs his captain always. Yeah, So as I the selector believe, is. क्योंकि अगर तू देखेगा 2023 की वर्ल्ड कप सिलेक्शन में भी सेलेक्टर्स ने राहुल द्रविड़ को केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दिए थे डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, बिकॉज कैप्टन और राहुल द्रविड़ ने उसको मांगा था. आई फील दिस कुड बी द बेस्ट टाइम फॉर गंभीर टू टेक दैट. लेकिन अगर कभी भी ऐसी दिक्कत आती है तो मे बी गंभीर हैज टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट एट द टॉप ऑफ द चेन हियर, जहां पे वो मे बी आईपीएल फ्रेंचाइजी में हो सकता था. मे बी वहां पे भी ऑब्वियसली ओनर हैड द बिगेस्ट अथॉरिटी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है. सिंपल. यहाँ पर I think this is where I'm starting to change my perception towards the BCCI. That is, if they're accepting a coach like Gambhir, I think they also know that अब results काफी important हो गए हैं. This is where I think Gambhir का कोच में आना sets up a new trademark कि ठीक है, अभी तक BCCI was the जो वो बोलते हैं पपेट मास्टर जो थे. अभी गंभीर ने जो सारी वो रखी थी कि मेरे को कैप्टन चाहिए, मेरे को अपना कोचिंग स्टाफ चाहिए, ये सब. इफ दीज आर एक्सेप्टेड, दैट शोज अ चेंज इन बीसीसीआई एज वेल इन माय ओपिनियन. दिस इज वेयर आई थिंक इंडिया गंभीर जो कोच बन रहा है, ही इज बिकमिंग द कोच ऑफ द इंडियन टीम एंड नॉट फॉर अ पर्सन, फॉर जो हम बोलते हैं एक स्टैंड अलोन पॉइंट फॉर बीसीसीआई कि यार ये बीसीसीआई का बंदा है जो बस कोच टीम में है. It's not going to happen like that. And Gambhir is bringing his own ideology. Gambhir is bringing his own players as well, in my opinion. I think Gambhir being appointed as the coach is going to set up new trends, is going to set up a new way. We're going to look at BCCI and the team का relation, and BCCI and ICC का relationship मेरे ख्याल से वही रहा है, उसके बारे में comment नहीं करना चाहता. But BCCI and team का जो relations बन रहे हैं in recent point, अजीत अगर का selection, the whole conference is coming back, and now GG being appointed as coach, it all shows BCCI also wants some transparency. BCCI also wants no bullshit, straight to business points for the team at least. जो उन्होंने अभी के अभी डोमेस्टिक के लिए बोलना शुरू कर दिया है, जो अभी के अभी इन्होंने रिसेंट बैकग्राउंड सेट कर दिया कि हम बॉलर्स के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं. इट ऑल शोज पॉजिटिव ग्रोथ यार, एंड गंभीर बीइंग अपॉइंटेड इज आल्सो वेरी ह्यूज पॉजिटिव ग्रोथ इन माय ओपिनियन. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. देखो, किसी भी नए कोच को आने के लिए सिंपल पॉइंट ये है कि वो हमेशा स्टैंड्स में ही बैठेगा. इट्स नॉट दैट ही इज गोइंग टू प्ले ऑन द फील्ड. आई नो गंभीर के लिए 11 के 11 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, बट ही आल्सो नोज हु द एमवीपीज ऑफ दिस टीम आर.
देखो बुमराह को डिस्कस करना इज लाइक समथिंग कि भाई उसको तुम किसी भी चीज में डाल दो वो बंदा परफॉर्म करेगा, चाहे तुम कोच दो परफॉर्म कर ना लेगा। दो, पानी ही है डज बुमराह नॉट। भाई, पानी है बुमराह, हाँ, वो he फ्लो can करेगा, वो फ्लो करेगा। seriously, but now with the new era coming, there is also a new era का dawn. एग्जैक्टली। नहीं, डस्क होता है, dawn होता है, चांद क्या होता है, डस्क होता है, हाँ, डस्किंग ऑफ डॉन, न्यू डॉन, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो मन चला की बात है। जाता हुआ एक एरा आ रहा है रोहित और कोहली का। एक फॉर्मेट से उन लोगों ने अपना गुड बाय कह दिया है, बट नाउ दिस इज द फेज उनको मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई नो दे आर द एग्जैक्टली, मोस्ट सीनियर प्लेयर्स, बट राइट नाउ मैनेजिंग देम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की यहाँ से। they are रोहित not एंड only कोहली, managing them as players, but I think the way they are managing, the way if they leave the team, that is handled because obviously, as you एग्जैक्टली, said, media मैं उसी बात आ रहा था, and 2027 fans, तक। bhai, the radical fans of these two will eat you up if you show a little bit even of disregard to them. They मैं will वही jump कह रहा on हूँ, you. देख 2027 तक का गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड विद माय knowledge of the game, I think Rohit and Kohli are not sustaining beyond 2027, at least both of them Hmm. are not sustaining beyond 2027। तो जो इनकी रिटायरमेंट फेज होगी, that will come under गंभीर का era। Exactly. सो मिनिमम अगर गंभीर एक्सटेंड भी करता तो उससे पहले इसी एरा में हो जाएगा। नाउ एक चीज जो मैंने पहले पॉइंट में बोली अबाउट यंगस्टर्स, बायलेटरल्स में यू विल सी गंभीर गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपल, एंड उसके Exactly. लिए he will have to ask a number of players कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, I have to try this and that। जो पहले Exactly. होता था ना कि किसी प्लेयर ने अपनी मर्जी से वो ले लिया कि आई डू नॉट वांट टू प्ले, आई डू नॉट वांट टू प्ले, गंभीर ने वो बोला नहीं तुम्हें होगा। आना पड़ेगा। बट साथ ही साथ रोहित एंड कोहली को भी गंभीर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गंभीर ने आते ही बोला मुझे रोहित एज कैप्टन चाहिए, ही नोज द पोटेंशियल बोथ दीस प्लेयर्स होल्ड। एंड देखिए Exactly. रोहित के बारे में तो And the ऑब्वियसली template हम, these both are playing here, I think Gambhir likes the template that, see, Rohit Sharma, we have seen Rohit Sharma, this is a player अगर टीम में है, he gives the coach confidence as well. Rahul Dravid इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ अभी जो उसने बोला रोहित की कॉल की वजह से रुका था। The senior players also विनिंग, motivates the coach. It's not always the other way around. The मैं क्या senior कह रहा players हूँ, will एक tell the विनिंग coach कि मेंटालिटी, भाई हमें तुम्हारे साथ ऐसे खेलना है, तू अच्छा कर रहा है, तू कंटिन्यू कर। कहते ना एक विनिंग मेंटालिटी जो होती है ना, वो गंभीर को हमेशा पसंद आती है। एंड नोबडी एवर इज बिगर देन दीस टू, जब विनिंग मेंटालिटी की बात आती है इन Exactly. लोगों के पास अलग लेवल का विनिंग मेंटालिटी है। एंड वन थिंग आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी माइट बी मिल्किंग अराउंड कि कोहली एंड गंभीर की नहीं बनेगी। आई एम ऑफ अ Exactly. कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन। हमेशा Same. जब भी कोहली और रोहित वो गंभीर भिड़े हैं ना, वो ऑन फील्ड ही भिड़े हैं, ऑफ फील्ड जाती दे बोथ आर ओके विद ईच अदर। ओके, आई एम Exactly. नॉट सेइंग कि वो भाईचारा निभाते हैं, बट मैं तो कह रहा हूँ भाई फोटोज जलती हैं उसी दिन। उसी दिन जब वो मिलते हैं फोटोज जलती हैं कि भाई नहीं आज मैं कोहली भाई से मिलके आया, आज मैं गंभीर भाई से मिलके आया हूँ। नहीं नहीं, अब तू देख, अब जो मेन फैक्टर होगा कि कोहली ना तुमने गंभीर के अंडर दे दिया है। कोहली को कभी इतनी फ्रीडम मेरे हिसाब से तुमने बोली नहीं होगी, जा मार, जो गंभीर उसको देगा, हाँ, जा जो करना है कर, मैं देख लूंगा। एंड भाई एंड एंड एक चीज, अगर 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 उन लोगों की बात जो लोग कह रहे हैं कि कोहली और गंभीर की नहीं बनेगी बिकॉज गंभीर विल ट्राई टू सप्रेस कोहली, मैं कह रहा हूँ दैट इज द बेस्ट वेयर कोहली परफॉर्म्स। कोहली अंडर Exactly. प्रेशर इज द बेस्ट वर्जन ऑफ कोहली एवर। तो कोहली को दोनों चीजों में फायदा है। इफ उसको बैकिंग मिलेगी तो वो तब भी तोड़ेगा, अगर कोहली को तुम सप्रेस भी करते हो तो वो ना तब भी तोड़ेगा। you're giving Kohli the menace, the free hand to perform. You're giving Kohli the menace to free hand to do his shithousery भाई on the pitch. Being very honest, अगर जीते हुए मेंटालिटी के अंदर कुछ कोई कर रहा है, जो भी सारी, अच्छा ठीक है, सारी जो केकेआर वर्सेस आरसीबी फाइट्स हुई हैं, वो उसी वक्त हुई हैं जब कोई एक साइड सॉल्टी हो। हाँ, इसमें दोनों के दोनों side। सेम पोजीशन में है। नहीं, कोच दोनों भी side गुस्सा salty करेगा, है। प्लेयर भी गुस्सा हो। नहीं, हाँ, एक हाँ, मतलब अगर कोई टीम हार रही होती तो हो मुझे जाता लगता था। ऐसा होता कि हाँ, कोहली का विकेट समझ चला गया तो वो ऐसे चारा भागता हुआ हाँ। चला गया, वो सब। इसमें तुम दोनों को साथ दे रहे हो, यू आर लिटरली मेकिंग 2 + 2 4। हाँ, रादर देन 2 - 2 तुम प्लस कर रहे हो उसको, सिंपल। हाँ, प्लस कर मैं रहे हो। मल्टीप्लाई तक कर रहे हो तुम लोग चीजों को। एंड मैं तो कह रहा हूँ भाई देखो, फॉर बोथ कोहली एंड गंभीर, इंडिया कम्स फर्स्ट, वी हैव सीन दैट। हाँ, उन चल दोनों ठीक है। से ज्यादा आई डोंट थिंक कोई वाइब करने वाला है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो सम डिसीजंस माइट बी ये कि भाई ठीक है तेरे को बाहर बैठना पड़ेगा वाले डिसीजंस पे मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कुछ उसका स्क्रूटिनाइजेशन हो सकती है, बट उसके अलावा इफ दे बोथ क्लिक, दे आर गोइंग टू क्लिक लाइक हेवन भाई। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द इसी के इन चारों के दोनों के पॉइंट्स को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा इनटू ड्रेसिंग रूम हार्मनी, बिकॉज अब ड्रेसिंग रूम को जो भी चीज एक वो ऑब्वियस है, व्हेन सीनियर्स आर सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, आपकी हार्मनी उनके थ्रू ही बहुत ज्यादा मैटर करती है कि सीनियर्स Exactly. कैसे सीनियर्स को लिया जा रहा है, सीनियर्स के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। वो ऑब्वियसली एक नया बंदा के सीखता We है। have seen the groups यार, we have seen the groups जो I was coming to this, एक तरह से बन चुका है। lobbies
when we were Lobbies. talking about the lobbies, right now गंभीर के अंडर I believe lobbies को there are two factors. कहीं ना कहीं उसको उस lobbies को दोनों को खुश भी रखना पड़ेगा. Some people say रोहित लॉबी अलग है, कोहली लॉबी अलग है इन द ड्रेसिंग रूम. आई बिलीव उन दोनों ने तो वो परसेप्शन तोड़ दिया है विद द वर्ल्ड कप, जो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ. लेकिन उसको दोनों को खुश भी रखना है, प्लस Exactly. उसको वो लॉबीज के बीच में कनेक्शन भी बनाना है कि ब्रो ना तेरी सुनूंगा ना तेरी सुनूंगा, आई एम माई ओन अपनी लॉबी. चलेगी भाई, टीम में हाँ. एक ही बुरा बंदा हो सकता है, वो मैं हूँ. हाँ, Bad टीम boss का हो एक ही सकता है, वो गुंडा मैं हूँ. होता है, वो मैं हूँ. आई डू शाहरुख नॉट खान केयर को चक दे इंडिया. तेरे पास कितनी पीआर है, तेरी पीआर कंपनी के पास कितने प्लेयर्स है जो मेरी टीम में है. ही डज नॉट केयर. सिंपल. Exactly. ही केयर्स मेरे पे पिच पे कौन ज्यादा परफॉर्म कर सकता है. ही डज नॉट केयर बिल्कुल. तेरे पास क्या है क्या नहीं है. नाउ इसी के साथ जितना वो हार्श कॉल्स लेता है, I think he has to maintain that dressing room harmony as well. One thing I Exactly. always appreciate about the 2024-2023 World Cup teams under Rahul Dravid and his coaching staff, एक खुशी का माहौल इन द टीम्स. भाई जो बीसीसीआई टीवी के हमने देखे हैं, चाहे वो फील्डिंग मेडल वाला सिनेरियो हो, बी इट द ट्रेनिंग सिनेरियोस, आई थिंक एवरीबॉडी लव्ड ईच अदर टू हिल. मतलब और चाहे मैं वो देखो, पिच में हाँ, जाके कुछ करे, पिच से बाहर आके, स्टेडियम से बाहर आके कुछ करे, बट इन दैट ड्रेसिंग रूम दैट थिंग कि एक दूसरे से एक वो हार्मनी में रहना, कि सिटिंग इन द अंडर द सेम रूफ, जो एक स्लोगन है, मतलब छत के नीचे नहीं, मतलब सिटिंग अंडर द सेम अम्ब्रेला. तुम लोग को एक चीज द्रविड़ और रोहित ने बहुत अच्छी मेंटेन करी थी. That is what I believe should happen under Gambhir as well. and That is that is what I necessary. believe will happen with Gambhir, because you look at the KKR का dressing room in 2023 वाला मैच, IPL itself, 2024 वाला IPL itself, उसके अंदर तुम देखो players love each other. सुनील नारायण अच्छा कर रहा है, उससे ज्यादा भाई हमारा ड्रेसिंग रूम में खुशियां होती थी. गंभीर को लेके हर एक प्लेयर इतना इमोशनल था. गंभीर जो बोलता था वो फाइनल होता था के वाले उसमें. व्हाट आई एम सेइंग सेट अप एनालॉजी. तुम देखो कैसे सीनियर्स ने यंगस्टर्स पाल रखे हैं भाई, लिटरली. रमनदीप ने कल आके आंड्रे रसल को अपना बिगेस्ट इंस्पिरेशन बोला है. रिंकू सिंह ने आके अपने दूसरे प्लेयर्स को ये बोला है कि हम उनसे खेलना सीख रहे हैं, बिकॉज हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना ज्यादा पॉजिटिव रहता है. And I will पीपल अराउंड. ये वही चीज ना, मैं तो केकेआर के नॉट जस्ट टू गंभीर, नॉट एवरी सक्सेस कैन बी रिलेटेड टू गंभीर एंड केकेआर. हाँ. जो बाकी कोचेस थे, बी इट अभिनव अय्यर, बी इट देयर एग्जैक्टली, बट मैं वैसे बोल रहा चंद्रकांत हूँ कि पंडित. उसको आता है ऐसे ड्रेसिंग रूम का माहौल सेटअप या फिर कंटिन्यू करना. मैं ये नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं तुझे वही बता रहा हूँ, केकेआर में क्या है कि अगर तेरे पास 25 बंदों का स्क्वाड है ना, दैट इज जस्ट फॉर 2 मंथ्स, राइट. एंड उसमें एक जो हमारे पास कट ऑफ बजट होता है ऑक्शन में, उसके हिसाब से यू हैव अ मिक्स ऑफ सीनियर्स, जूनियर्स, यंगस्टर्स. बट इंडियन टीम की जब बात आती है ना, इट्स नॉट अ पूल रिस्ट्रिक्टेड टू 25 प्लेयर्स जिसको उसको केटर करना है. तो गंभीर की, तो राहुल द्रविड़ की एक बात सोचेगा जो रोहित ने बोली कि राहुल द्रविड़ जो बंदा नहीं भी है ना टीम में, उसको भी कॉन्स्टेंटली वीकली कॉल्स करता था कि भाई तेरा अगर तू जब भी टीम में सिलेक्ट होता है, तेरा ये रोल होने वाला है इस टीम में. दैट इज व्हाट मी एंड रोहित सी यू एज अ प्लेयर. वही चीज गंभीर के साथ भी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ 25 पूल प्लेयर, इट्स एटलीस्ट आई विल से, अगर तुम इंडियन टीम की बात कर रहे हो तो 50 प्लेयर, चल ठीक है 40 प्लेयर तो हैं जो आपकी 11 के लिए हमेशा कॉन्टेस्ट करते हैं. आपको उन बाकी प्लेयर्स को भी, जो 15 प्लेयर्स आपने सेलेक्ट करे हैं एक सीरीज के लिए, उसके अलावा जो 35 या 25 प्लेयर टीम में रह गए ना, आपको उनको भी केटर करना है साथ साथ, कि भाई तुझे इस सीरीज में इसलिए सेलेक्ट नहीं करा, बट अगर तुझे सेलेक्ट होना है तो यू हैव टू डू दिस. But I think this is where गंभीर and itself also, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये तो मेरे लिए गंभीर का पॉजिटिव हुआ, क्योंकि गंभीर के जो तू पूल बोल रहा है ना, वो पूल चेंज होने से बेटर पूल में जो बंदे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और उनको पता होगा कि मेरे को क्या एग्जैक्टली करना है टू मेक इट इनटू द टीम. आई होप सो मतलब तो मेरे लिए वही चीज हार्मोनाइज काफी अच्छे से करेगी. आई होप सो. चलो, so these were the factors हमारे हिसाब से होने वाले हैं for गंभीर सक्सेस और फेलियर. Do let us know what do you see as गंभीर का सिलेक्शन के तुम लोग कैसे परसीव करते हो, how things can change under the new era. Do let us know in the comment section below. बाकी मिलते हैं in the next video. Do not forget to like, comment and share. भाई जी भाई कुछ अच्छा कर देना भाई. Feeling up around Indian Army.